Namaskar, Namaskar, and welcome all to this Sattology, special Sattology Sunday sessions. Sat means truth, Logos means a study or science, Sattology means a science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science of fake lie imagination or study of fake lie imagination. So, so we at Sattology always try to present you facts. All our programs are meant to give you a complete picture, not a incomplete picture, especially when we deal with satya or truth. And our meditation programs in different corporates are focused on employee productivity and employee retention. And there's a buzzword also called employee engagement. But everything begins from truth because the entire human society is searching for the truth. We expect others to be truthful. We expect others to be. We all expect it. Our expectation from others is very high. It should be the reverse. Our expectations from others should be less, and our expectations from ourselves should be high. Like what we are, who we are, it should be high from ourselves. So, in today's talk, I'm going to focus on speech, the art of speaking. It's again, I will give you an answer which is definitive. So, most of the times, we all engage in go to different, like especially the business world or corporate world. We go to attend those events, and we focus on the art of communication, like speech, art of speech, like how do we communicate, how confidently we should stand, how we should look in the eye of the other person, how we should behave. hmm? And it's all about method of communication. But is that the art of speaking? We will talk about today. वार्ता, I'll take in हिंदी also. वार्ता के विषय में बहुत ही कम जगह बोला गया है, और वो एक्सटर्नल, एक हम लोग बोलते हैं कि काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप बात करिए और लोगों को दिखना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको समझ में मतलब आपके आंखों में आंखें डाल के आप बोल सकते हैं, ऐसा बताते हैं. बट द एसेंशियल रिमेन्स सत्य, क्योंकि जो भी आप बात करें वो इस प्रकार का हो जो लोगों को समझ में आए, आपको बार बार उसको रिपीट ना करना पड़े. और एक बार आपने कुछ बोला, या तो फिर आप उसके बाद आप उसको बारे में आप वापस आपको उसमें एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है. वंस यू हैव स्पोकन, एंड दैट इज द फाइनल. अदरवाइज मेंटेन साइलेंस, है ना. क्योंकि दुनिया में इफ यू टॉक अबाउट सीक्रेट्स, द बिगेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड इज साइलेंस. और इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड फॉर पीपल टू प्रैक्टिस इट, है ना. अगर शांत रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, वो दुनिया का सबसे गूढ़ रहस्य है. तो इसीलिए आप देखेंगे कोई भी अवतार, कोई भी ऋषि, उनकी प्रवृत्ति को बोला जाता है गंभीर. गंभीर मतलब मतलब सीरियस नहीं होता. गंभीर का मतलब, गंभीर का अर्थ होता है कि जो बहुत ही सोच समझ के बोले, उसी को बोलते हैं में सत्य बोलने की कला, उसी को बोलते हैं कला. The art of speaking is to speak words which are with full depth. That is art of speaking. And generally you will see people who do that, they are the ones who are successful. जो लोग इस प्रकार से बोलते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं. ये हमारे शास्त्रों में प्रमाण है. जैसे दशरथ महाराज के बारे में बात करूं रामायण से, दिस इज अ फैक्ट इन आवर एंशिएंट नॉलेज सिस्टम्स, वेदों में, इन वेद, that we have to speak what is relevant and what is truth, uh, for the common mass generally. And when we engage in such kind of communication, then it builds our credibility. जब हम सत्य पे, जो कि सबके लिए सत्य हो, उस विषय पे जब हम बात करते हैं, तो लोग वी वी गेट मोर क्रेडिबिलिटी.
हमको ज़्यादा उससे क्रेडिबिलिटी आती है ना। लोग समझते हैं कि ये व्यक्ति गंभीर बातें करता है। गंभीर मीन्स सीरियस नहीं हो, गंभीर का अर्थ होता है अर्थयुक्त बातें। Serious talk in English is a very incomplete language, so in English the meaning will be of gambhir will be a thought words well thought words, depth, with lot of some depth, you know? So with that being said, uh, there are three qualities of speech, four qualities of speech in Bhagavad Gita, which is mentioned. Anudvegakaram vakyam satyam. Anudvegakaram vakyam. Vakya means speech. Vak means to talk. Vakyam. Vakya doesn't mean sentence. Okay? Nowadays we say so vakya means sentence. Vakya means what should be spoken. That is called vak. Anudvegakaram vakyam satyam priya hitam chayat. Swadhyaya bhyasanam chaiva. Vakyam tapa uchyate. So the which is when you say the, और हमको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है. We have to practice also. Like we cannot just say something and get away with it. We have to practice also. So anudvegakaram vakyam. So when we are talking to different people, our words should be anudvegakaram, should not be agitating others. First quality of speech. Okay, the art of speaking. हमारे शब्द किसी दूसरे के लिए एजिटेटिंग ना हो, प्रिय शब्द को यूज करें, एजिटेटिंग ना हो, दूसरे को परेशान ना करें, दूसरे को चित्त को ना भ्रमित करें, विभ्रमित करें. या तो बोलिए मत, शांत रहिए. शुड नॉट एजिटेट अदर्स. सत्यम, सेकंड क्वालिटी ऑफ स्पीच, सत्यम, ट्रूथफुल. वॉट एवर ट्रूथ यू नो, दैट मच यू शुड स्पीक. आजकल का समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम सभी लोग कुछ भी बोलना चाहते हैं. We speak anything, we speak anywhere, we want to just impress others, how much you know, very little you know, and you share. We do that all the time. All of us do that. कम से कम पता होता है लेकिन उसी को हम बोल देते हैं बस, क्योंकि उतना ही पता है हमको. और जाके सोशल मीडिया पे लिखते हैं, 10 फॉलोअर्स आ जाएंगे, 15 ये लोग आ जाएंगे और आपका काम खत्म, है ना. तो उससे किसी को फायदा नहीं है, ना आपको फायदा है ना दूसरे को फायदा है. क्योंकि पहली बात तो क्वालिटीज क्या है कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय. थर्ड क्वालिटी इज प्रिय. सेकंड इज ट्रूथफुल, सत्यम प्रिय. द वर्ड्स विच शुड बी प्लीजिंग टू अदर्स. जस्ट ऐसे ही शब्दों का प्रयोग नहीं करना है. द वर्ड शुड बी प्लीजिंग टू अदर्स, प्रिय. इफ यू डू नॉट हैव द वर्ड्स which are pleasing to others, it is not going to be part of the effective communication, the art of speaking. You know? It has to be very loving, to pleasing to others. Yes. When we're talking about civilized society, the most important medium of communication that we have is speaking. जब हम सभ्य समाज की बात करते हैं तो हमारे शब्द ही हमारा सबसे बड़ा उनका बेसिस है, उसका सिद्धांत है शब्दों का. क्योंकि शब्द के बेसिस पर ही समाज आगे बढ़ता है. कभी कभी आपको क्रोध भी बहुत आएगा, कोई बोलेगा तो क्रोध आएगा, लेकिन आपको वापस मन को वश में लाना जरूरी है. और मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी दूसरे को विचलित करने के लिए शब्द बोलते हैं, व्हेन यू स्पीक समथिंग टू डिस्टर्ब अदर्स, देन एक्चुअली डिस्टर्ब्स यू मोर. वो आपको ज्यादा स्वयं विचलित करेंगे, दूसरे को कम करेंगे. व्हेन यू स्पीक एनीथिंग टू अदर्स टू डिस्टर्ब अदर्स, इज गोइंग टू हर्ट यू मोर, बिकॉज यू आर गोइंग टू फील इट, यू आर गोइंग टू से इट. And if somebody else also is equally skilled as you, अगर दूसरे की भी इतनी क्षमता होगी, they will, वो आपको वापस बोल देंगे. तो it is not a good practice. और एक झूठ को छुपाने के लिए, हमने बहुत बार सुना है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है, एक झूठ को छुपाने के लिए हमको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं. To hide one truth, we have to speak many untruths. To hide one lie, we have to speak many lies.
लेकिन सत्य आपने एक बार बोला तो उसके बारे में आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है. So this all knowledge is coming from Bhagavad Gita, 17th chapter, 15th shloka. This is the shloka which I am quoting right now. वो एक श्लोक में ही सब कुछ बता देते हैं भगवान, है ना. सत्यम प्रिय हितम अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय. We have discussed three. Fourth is hita. It should be for somebody else's benefit. See, the law, the words should be spoken for somebody else's benefit. Because in any communication, when you speak for somebody else's benefit, that is considered the best sales conversation. You don't tell something to someone to tell that how it will be lost to somebody. The art of positive communication. Bhagavad Gita is teaching you this. And so when you do not practice these kind of things for the art of communicating something beneficial to others, दूसरे के हित की बात करें. भगवान ये नहीं बोल रहे अपने हित की बात करो, दूसरे के हित की बात करो. आपके शब्द जो है should come out for somebody else's benefit. हितम चयन स्वाध्याय अभ्यसनम चैव. And so अनुद्वेगकरम सत्य प्रिय हितम स्वाध्याय. वेल रिसर्च. आपको स्वयं पढ़ाई करना जरूरी है. स्वाध्याय व्यसनम. स्वाध्याय मीन्स आपको बड़ा सोच समझ के उसको बात करना है. यू नो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब श्री राम मीट्स लक्ष्मण. मेरी बुक भी आ गई है ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण, kapoth.in पे आपको मिल जाएगी. आप वहां से खरीद सकते हैं भारत में. एंड इफ यू आर लुकिंग ऑन Amazon, then search Sattology on Amazon. You'll see One Arrow, One Kill. तो उसमें that book is based on Ramayana. But there are other books also. 8 other books are there. So you can search it out. So in that book I've mentioned, when Hanuman meets Sri Ram, that time Sri Ram, जब हनुमान राम को मिलते हैं तो मैं हर आई विल स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. सो हैव पेशेंस. ठीक है, आप सुनते रहिए, आपको समझ में आएगा. So when Sri Ram meets Hanuman, so Hanuman is introducing himself with the message of Sugriv. But Sugriv is very scared. तो जब भगवान राम हनुमान को मिलते हैं तो जब क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव ने जो मैसेज भेजा है, जो भगवान राम को संदेश भेजा है, उसको बोलते हैं कि सुग्रीव बहुत डरा हुआ है, वाली से डर के घूम रहा है. उसको लग रहा है कि उनको वाली ने भेजा है. एट दैट टाइम हनुमान इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ. हनुमान अपने आप को बताते हैं कि वो कौन है. और तब जो श्री राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि ये व्यक्ति ने सारे वेदों को पढ़ा है, सारे वेदों का अध्ययन किया है. इस व्यक्ति ने सभी वेदों को अध्ययन करके इस व्यक्ति के शब्द उस प्रकार के हैं. पढ़ा लिखा व्यक्ति है हनुमान. So then Ram tells Lakshman that this person has read all the Veda. His language is sophisticated. He has understood them and is living like them. Sri Ram tells to Lakshman. So that is the meaning of Swadhyaya. Because the moment you know things as they are in detail, then your language changes, your communication changes. It becomes more educated. Or in our system of education of Veda, Ramayana, Mahabharata, Puran is considered education. If somebody is educated in that, अभी इतना समय नहीं होगा, there is not so much time for everyone. लेकिन you can just read Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is enough to read. You don't need any other thing. So the fifth principle of speaking, art of speaking, is the Swadhyaya. Swadhyaya means you must be well read. स्वाध्याय अगर नहीं किया आपने वेदों पे,
तब आपको ये जो बातें हैं, जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग विल नॉट हैपन, क्योंकि स्वाध्याय इज वेरी एसेंशियल फॉर एनीवन। एंड द सिक्स्थ इज अभ्यसनम, प्रैक्टिस। हमको जो हम बोलना चाहते हैं, अगर हम पढ़ेंगे ज्यादा तो वी हैव टू प्रैक्टिस आल्सो, अभ्यसनम। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्टेरिटीज ऑफ स्पीच। मतलब ये जो है, जो वाक विद्या में ये प्रकार, इस प्रकार की ऑस्टेरिटीज, मतलब तप, इसको तप बोलते हैं, क्योंकि आप कंट्रोल्ड स्पीच की बात कर रहे हैं, जस्ट रैंडम स्पीच की बात नहीं करते। तो इन सब क्वालिटीज को आप, जैसे द्वे कर्म वाक्यम सत्य प्रिय हितम चयत, अब स्वाध्याय व्यसनम चैव, तप उच्यते, मीन्स कि ये तप है, दिस इज ऑस्टेरिटी दैट यू डू, वानमयम तप उच्यते। सो and generally we talk randomly, we now see most of the world's problems today are due to uncontrolled speech, because we just randomly speak anything. If we cannot speak, we actually do tweet, we tweet everything, or we put on the Facebook without understanding why we are doing it, what we are doing it, है ना। तो इसलिए हमको जो है, ये जो तप है, जो वाक का जो पैमान मयम तप उच्यते, ये जो तप है उसको प्रैक्टिस करने का बहुत आवश्यकता है, बहुत उसकी आवश्यकता है। जनरली हम लोग इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और उसकी वजह से इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस एज वेल एज फॉर अदर्स, बिकॉज वी डिस्टर्ब समबडी एल्सेस माइंड। एंड हम लोग को लगता है कि हम कुछ भी बोल देंगे, या फिर बिकॉज हमारा पोजीशन ऐसा है, हमने कुछ भी ऐसा बोल दिया। अगर यहाँ पे उदाहरण की तरह लें, उदाहरण में, तो दशरथ महाराज, द फादर ऑफ श्री राम, दशरथ महाराज, he was known as Varta Varchasva, means he used to communicate. He is a diplomat, also he is a king, and he used to communicate in words which will win people's heart. दशरथ महाराज का उदाहरण है। दशरथ महाराज जब लोगों से बात करते थे तो वो दुनिया, लोगों का हृदय जीत लेते थे। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल है वसुदेव का। कृष्ण के तो पिता कोई होते नहीं है, लेकिन कृष्ण पृथ्वी पे आते हैं तो उन्होंने अपना पिता उनको माना, देवकी और वसुनंदन को, देवकी और वसुदेव को। तो वसुदेव को भी वार्ता वर्चस्व बोला गया है, बिकॉज वो कंस के साथ इतना मधुरता से बात कर रहे हैं। वसुदेव ऑल्सो इज नोन एज वार्ता वर्चस्व, मीन्स द टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ हाउ टू स्पीक। And there are other many examples of this kind of behavior is Yudhishthir. Yudhishthir is very controlled speech. Arjun is very controlled speech. Arjun ka speech is very vinamra. Is very soft spoken, vinamra. And he maintains anudvega karam vakyam satyam tri. So people do not appreciate you by your knowledge, by your wealth, by your anything. Doesn't matter how much you earn anything. I'm talking about respect. People respect you when you have these qualities. लोग आपको आपको आपके साथ कितना भी धन हो या ना हो, लेकिन जब आपके अंदर, जब आप आपके बातचीत करने के तरीके से ही लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो है, हम लोग को किसी घमंड के कारण, अभी मैं एक बड़े अच्छे लेखक के साथ बात कर रहा था, तो बड़े हम लोग का डिस्कशन चल रहा था। हमको ज्ञान का अहंकार होता है, बट वी डू नॉट हैव वी डू नॉट हैव दी, मतलब अहंकार का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अहंकार है, लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं है। वी हैव प्राइड ओवर नॉलेज, बट वी डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ प्राइड, and which is a big problem today. Throughout the world today, the world is in turmoil because people do not know how to speak. Everywhere, whether any country you go, any place you go, in the offices, और जबकि एंड अगर आप देखें, our behavior has also become very artificial in the offices also, very artificial. When we go to the office, we just say good morning and we start our day. भारत में होंगे तो सुप्रभात, और दिन शुरुआत कर दिया।
Nobody is interested in communicating anymore. But it's your communication or speaking which determines your promotion, not the other way around. And these are the qualities, essential qualities of speaking. Yeah. Most of the communication in America में ऐसा बोलते हैं small talk. See, in India, people copy. In the corporate world, people copy what they do in America. In India also they copy. It's called small talk. Small talk means इधर उधर की बातें, ये मेन बात नहीं है. Small talk means talking about everything else but the main topic. So it is a strategy of communication which is totally different. We are talking about the essential qualities of communication, speech. They are two different topics completely. Because the small talk principle, American small talk principle, जो छोटी बातें, we are trying to actually impress people or divert the attention from the main topic and then communicate the main topic. That is not how our Shastras recommend completely. Look at many examples, many examples, difficult examples. In the middle of a war in महाभारत के बीच के युद्ध में अर्जुन सारी सेनाएं, दोनों तरफ की सेनाएं तैयार बैठी हैं और युधिष्ठिर महाराज अपनी सेना का पक्ष छोड़कर भीष्म की तरफ आते हैं, बीच में से दूसरी तरफ आते हैं. तो लोग पूछते हैं कि अभी क्या युधिष्ठिर जो है अभी समर्पण करने जा रहे हैं? इज युधिष्ठिर गोइंग टू सरेंडर? पूछते हैं लोग. लेकिन युधिष्ठिर, लुक एट द स्पीच क्वालिटी. युधिष्ठिर सेज कि विदाउट टेकिंग ब्लेसिंग ऑफ माय एल्डर्स or without having the orders of my elders, how can I fight? And at that time, what Duryodhan is doing? Duryodhan is laughing at him. Duryodhan is saying, what a weak. He is already lost before the war started. He's so weak. People are going to mock you. People are going to, when you practice this in your life, people are going to mock you. People are going to make fun of you. लोग आपका मजाक बनाएंगे अगर आप ये सब ये जो है इसको फॉलो करेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे. ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को. ये कृष्ण भगवान के शब्द है. लोग मजाक बनाएंगे, क्या बातें करता है, क्या करता है. लेकिन जब आप इसको एक्चुअली अपने जीवन में फॉलो करेंगे तब आप युधिष्ठिर के जैसा जीतना शुरू करेंगे लोगों को. यही जीतने का तरीका है. लोगों को आप शस्त्रों से जीत सकते हैं लेकिन ज्यादा टाइम तक उनको जीता हुआ नहीं रख सकते, क्योंकि लोग चिढ़ के वापस आपके ऊपर आक्रमण करेंगे. लेकिन युधिष्ठिर को कभी चिढ़ के किसी ने आक्रमण नहीं किया, कभी चिढ़ के आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उसको बोलते हैं अजात शत्रु. उनके शब्द ऐसे हैं कि लोग उनको कभी अपना दुश्मन नहीं मानते, है ना. हमारे शास्त्रों में बोलते हैं कि शत्रु को हराओ लेकिन अपमानित मत करो, है ना. बाकी के शास्त्रों में क्या होता है, शत्रुओं को हराओ, अपमानित भी करो. इसलिए वो ज्यादा टाइम तक चलते नहीं, थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं. So our Shastra, our scriptures say, Veda, Bhagavad Gita says that, not Bhagavad Gita, this is mentioned as the Niti Shastra, that defeat the enemy, not humiliate them. This is the situation of the World War I. World War II happened because of this. The humiliation of German state resulted in Hitler. You know, this is history. What is happening today, if people don't learn from history, is getting repeated every day. Isliye we have to make correction in our own life. So these principles of speech that you're talking about, the science of speech, if anyone of you follows it in your office, and we do a lot of training programs, there are 12x meditation programs for the corporate office, हमारे बहुत सारे programs चलते हैं और उधर हम ये सब चीजें डिस्कस कर सकते हैं. okay? और जब हम डिस्कस करेंगे तो यू विल सी सक्सेस इन योर ओन लाइफ many times, because these are the topics to actually discuss and study and share. बाकी सब टेम्परेरी है, everything else is temporary. These are things to share and discuss, है ना. बाकी सब जो है आता है जाता है, लेकिन किस तरह हम अपने लोग लोग आपके ऊपर विश्वास इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको बहुत ज्ञान है.
लोग आपके विश्वास इसलिए करेंगे कि आपके वचन अच्छे हैं, आपके बोलने का तरीका अच्छा है। अदरवाइज लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। तो यही टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं हमारे सैथोलॉजी कोर्सेज में। इसी टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशंस होता है। जरूर जुड़िए, सब लोग जुड़िए, और प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। अपने ऑफिसेज में शुरू करिए सैथोलॉजी प्रोग्राम्स। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, sathology@sathology.org। लास्ट वन, अभ्यसनम, प्रैक्टिस। है ना, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया अनुदेय करम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम चयत, स्वाध्याय व्यसनम चैव, वान्मयम तपोच्यते। तो तो so abhyasana means practice. So you have to practice anu, anudvegakaram, do not speak agitating words. Practice satyam, do not speak untruthful words, speak only truth. सत्य बोले, झूठ बिल्कुल ना बोले। सत्यम प्रिय, स्पीक वर्ड्स विच आर प्लीजिंग टू अदर्स, दूसरे को शब्द आपके प्रिय लगे। हितम, दूसरे को आपके शब्द हितकारी लगे, जो भी वॉट एवर यू स्पीक शुड बी बेनिफिशियल टू अदर्स। स्वाध्याय, you must cultivate knowledge from Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is a summary of all the Veda. So you can at least in one place get all the information. So Bhagavad Gita speak on when I say Bhagavad Gita means all the Veda are included. And parts of Ramayana also included, where Krishna says Janak Maharaj also did tapasya. So रामायण का भी एक छोटा सा पार्ट है भगवद गीता में, जनक महाराज का नाम है। और and then you should प्रिय हितम चयत, स्वाध्याय। Swadhyaya means you should practice learning, you should gain your knowledge from various Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita. Usually it refers to Vedic knowledge only, because everything else is just relative. You know, अगर आप वेस्टर्न साइंस की बात करते हैं, वो बोलते हैं आज दूध नहीं पीना, कल पीना है। टुडे यू शुड ड्रिंक ओनली घी। समटाइम्स दे से घी अच्छा नहीं है, नेक्स्ट डे दे से घी इज गुड। है ना, one day they'll say ghee is not good, second day say the ghee is not good, and they will say all these kinds of things. Keep changing. Vedas don't change. Pancha dravya, pancha gavya. So, like the ghee is an essential part. You should eat ghee because it's mentioned in Veda. Okay, so we only go by the Vedic truth. That is science. Everything else is mental speculation. सब मनोभ्रांतियां फैलाते हैं कि अपने अपने हिसाब से, लेकिन जो वेदों का जो तथ्य है उसी को सत्य बोला जाता है, बाकी सब रिलेटिव है। आज है, कल नहीं है, कभी भी ऐसा हो सकता है ना। तो when you follow this swadhyaya, you need to cultivate knowledge, and abhyasanam, practice also. You need to practice in your own life. See, if we maintain this quality of standard of speech, इस प्रकार से अगर हम लोग सत्य के ऊपर या इस प्रकार के हम लोग वाक या हम लोग कल्टीवेट करते हैं, then we will get success everywhere in the world you'll get success. और आजकल जो भी वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, और जो भी हम लोगों को विश्वसनीयता के वो प्रश्न उठते हैं, वो इसलिए उठते हैं क्योंकि हम लोग ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते। जैसे हम लोग ये प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे पास से हट जाएंगे, है ना? तो इस पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, लेट अस एनालाइज द साइंस ऑफ स्पीच फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव, ओके, एंड विल मेक फन ऑफ दैट। सो बी रेडी। आप लोग आज लाइव जुड़े हैं तो थोड़ा पर्सनल भी मैं बात करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको इंग्लिश में हिंदी में दोनों में बोलूंगा। सो व्हेन यू गो टू एन ऑफिस, एवरीवन इज ड्रेस्ड वेल एंड यू ग्रीट एवरीबॉडी, एंड यू ऑल नो द अदर पर्सन डजंट लाइक यू। होता है सबके साथ। जैसे वो ग्रीट करते हैं, यू नो द अदर पर्सन डजंट लाइक यू, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। हमने सबने एक्सपीरियंस किया है। उसी को बोलते हैं स्मॉल टॉक। व्हाट यू स्पीक इज व्हाट यू मीन।
what you do not mean actually. You say how are you, लेकिन you want to tell them that go to hell in English. You actually want to tell them, but we just do औपचारिकता, artificiality. That is not the message from Bhagavad Gita. You have to be real. Bhagavad Gita, that's why it says swadhyaya besanam chaiva. Your words should not agitate anyone else. You have to be real. Otherwise आप कैसे अपने वेदों को रिप्रेजेंट करेंगे, राम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, युधिष्ठिर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? दूसरे लोग ऐसा बिहेवियर करें, लेकिन आपको वी हैव टू स्टे रियल. दैट इज द फर्स्ट आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीच. मैं इस पे बहुत ही डिटेल में कभी कभी बात करता हूँ, लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ही डिटेल में जाता हूँ, बहुत सारे डिटेल्स में जाता हूँ इसमें स्पीच में. एंड सत्यम, most of the times in the or public life or private life, truth is the biggest casualty. We all speak relative truth. Relative truth means what you see is a truth, and if you are convinced about it, then that is the truth for you. That means if you are proved wrong, you have to accept also. You're not going to fight. If you fight on the basis of wrong things, until then it's all going to create a problem. It's like eye for an eye makes the whole world blind. सी इन टुडेज वर्ल्ड क्या होता है कि जब हम लोग सोचते हैं कि जो हमने बोला या जो हमको समझ में आया वही सत्य है, वो वास्तविक भी है क्योंकि आपको उतना ही समझ में आया है. लेकिन कोई अगर व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति तर्क वितर्क से आपको अच्छी, उससे भी बेटर कुछ बताता है, देन वी शुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट इट. उसको बोलते हैं विनम्रता. प्रिय, उस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. दैट वी ऑल, द प्लीजिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स विच बिल्ड रिलेशनशिप्स. जो प्रिय, सबको सबको आप सभी लोग चाहते हैं कि आपसे लोग प्रिय बात करें, लेकिन हम किसी और को प्रिय बात नहीं करना चाहते. हम उसको बताना चाहते हैं सत्य, तो सत्य कठोर नहीं होता. सत्य इज नॉट हार्ड. ट्रूथ इज नॉट हार्ड. हम लोग बोलते हैं सत्य तो बहुत कठोर होता है. लोग मुझसे बहुत बार ऐसा बोलते हैं, लेट मी टेल यू द ट्रूथ. मैं उनको बोलता हूँ व्हाई नाउ, ऑल द टाइम. हर समय बोलना चाहिए ट्रूथफुल. लेट्स बी ट्रूथफुल ऑल द टाइम. सो एक नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि we have to sometimes, we cannot tell everything to everyone. That's where you need to learn to stay silent. Mon. Because if you're not silent, then you're going to speak something which is come in your mind. And the people who are not successful in life are the ones who do not know how to control to speak. Vacho Vega. Anyone who does not know how to control Vacho Vega, that person is the loser in the world. Okay. Then uske baad hitam. So when we are in the corporate world, we say to others that is good for you at your level, that is good for you, hitam. But that is not a hitam talk. You are actually showing the other person the position. किसी दूसरे को अगर बड़ी कंपनीज में आप देखेंगे तो आजकल बहुत कॉर्पोरेट के लोग भी जुड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा उनके लिए बात कर रहा हूँ. तो कभी कंपनी देखेंगे तो ऐसा बात करते हैं, वो आपके लेवल के लिए ठीक है, but that is not the quality of speech. Quality of speech is when you tell something to someone, it is applicable to all the levels. क्योंकि आपको उतना, जितना आपको मालूम है, जितना बता सकते हैं उतना ही बोलेंगे. वो सबके लिए सत्य है. ऐसा नहीं कि उसके अलग है, उसके लिए अलग, उसके अलग है. पानी का रंग होता है कलरलेस. अभी वो सबको एक ही जैसा दिखता है. पानी में कलर नहीं है. पानी में कलर होगा तो सभी को दिखेगा कि पानी में कुछ मिला हुआ है ना. ये सबके लिए सेम क्वालिटी है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है. तो उस प्रकार का जब हम हित की बात करते हैं, वो सबके लिए सेम है, beneficial for all. I give one example, very simple, in an office, or in a private setting or anywhere else. कोई आपको पूछे कि वो स्टेशनरी का कमरा किधर है, जहां से ऑफिस का सप्लाईज मिलता है या कुछ मिलता है घर पे, वो कमरा किधर है, और उसका आंसर तो एक ही होगा,
क्योंकि ऑफिस में ऐसा तो बड़े ऑफिस में होता है कि हर कोने में कुछ लगा होता है, प्रिंटर वगैरह रहता है, बट उस एरिया के लिए वही एक ही जगह है, एक ही आंसर है उसके लिए, है ना? दैट इज द वे ऑफ हितम, बेनिफिशियल, कि वो आंसर सबके लिए बराबर है. सो वी फॉरगेट दिस. हम लोग जब बात करते हैं बोलते हैं कि आजकल हिंदुओं में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये हायर टॉपिक्स है. हायर, भगवत गीता में हाईएस्ट टॉपिक भगवान ने खुल के दे दिया है सबको. उसके ज्यादा हायर कौन सा होगा भाई? मानते हो बात? व्हाट इज द हायर टॉपिक इन भगवत गीता? कोई आंसर देगा इसका? बोल सकते हैं, चैट कर सकते हैं ना. हायर टॉपिक क्या है भगवत गीता में? थोड़ा मैं रोकता हूँ, मैं सुनना देखना चाहता हूँ कि आप सुन भी रहे हैं कि नहीं. सिर्फ ऐसे ही थम्स अप दे रहे हैं इधर. बताइए भगवत गीता का हायर टॉपिक्स कौन सा है? जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं बोल सकते हैं. तो एनीवे, भगवत गीता के हायर टॉपिक के बारे में कोई मुझे पूछता है, पूरी भगवत गीता ही हायर टॉपिक है. तो हम लोग बोलते हैं कि क्या हिंदुओं का हायर टॉपिक्स, लेट्स डिस्कस द हायर टॉपिक्स, गूढ़ विषय. भगवान बोलते हैं सबसे गूढ़ विषय तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, बोलते हैं भगवत गीता में, है ना, कि सबसे गूढ़ विषय हम डिस्कस कर रहे हैं. भगवान बोलते हैं क्या है? राजगुह्यम. कौन सा है वो गूढ़ विषय? गूढ़ विषय है भगवान सबसे बड़ा, कि उनको कैसे प्राप्त किया जाए, ये गूढ़ विषय है. ओके, सबसे बड़ा. तो सारे सीक्रेट्स तो भगवान ने पब्लिकली में डाल दिए. भगवान हैज पुट ऑल सीक्रेट्स, द हाईएस्ट सीक्रेट्स इन पब्लिक डोमेन इन भगवत गीता. व्हाट कैन बी द हायर टॉपिक देन दैट? उससे बड़ा टॉपिक क्या होगा जो सारे गूढ़ विषय पब्लिक में है ना. तो देयर इज नो सच हायर टॉपिक. गीता सबके लिए सेम है और गीता का हर शब्द हायर टॉपिक है. सो दिस काइंड ऑफ डिस्कशन शोज that that person has not done swadhyaya when somebody talks like that. Obviously there are certain topics which are not discussed without you are mature. Hmm? Like Ras Leela is not discussed publicly by anybody when until you are mature. If you don't not mature, we will not discuss with you. वो एक अलग तरह का इशू है. But generally the whole Bhagavad Gita is a book of secret. ये पर्सनल कन्वर्सेशन है कृष्ण और अर्जुन की. द होल कम्युनिकेशन इज आउटसाइड. ये पर्सनल कम्युनिकेशन चल रही है. भगवान राम और लक्ष्मण की बातें प्राइवेट बातें हैं, वो पब्लिकली बताई है वाल्मीकि रामायण ने हम लोगों को सिखाने के लिए, है ना. सो यू वी हैव टू कम्युनिकेट, वी हैव टू हैव स्वाध्याय. स्वाध्याय होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. बिना स्वाध्याय किए आप यू कैन नॉट become vakapatulta, like the expertise in speech is not going to come without cultivating swadhyaya. And the second most important thing is abhyasanam. We have to practice every day in our lives. We have to practice every day. जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं है. आपको सक्सेस बिना प्रैक्टिस के नहीं मिलती. विदाउट प्रैक्टिस यू डोंट गेट सक्सेस. तो ये शास्त्र सिर्फ पढ़ने के लिए भी नहीं है, ये अपने जीवन में उसको उसका उपयोग करने के लिए भी है. और एक और बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप शास्त्रों पे या शास्त्र अध्ययन नहीं करते तो आप स्वयं क्वालिफाइड नहीं होते उस पर बात करने के लिए. तो स्वयं अध्ययन करना बहुत जरूरी है. मैं जब पुस्तक लिखता हूं तो मैं पुस्तक सिर्फ दूसरों को पढ़वाने के लिए नहीं लिखता हूं या बेचने के लिए नहीं लिखता हूं. वो पुस्तक मेरा भी अध्ययन है. इतने वर्षों से जो मैं कर रहा हूं वो सारा एक्सपीरियंस उस पुस्तकों में है. और तभी हम लोग डिस्कशन करते हैं उसका. ऐसा जनरली बोला जाता है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग
You have to speak which will follow all these qualities, and plus which will not disturb Tan Krishna Vido Mandan Krishna Vinna Vichalayat. Krishna Vinna Vichalayat. Never disturb the other person. You know, दूसरे को विचलित ना करे, इस तरह का डिस्कशन किया जाता है. और तो वी विल वी हैव टू स्टार्ट लिविंग दिस लाइफ. अभी आप लोग इस सेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो लोग हमारे कॉर्पोरेट प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, अपने कंपनीज में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, वो sattology@sattology.org पे लिख सकते हैं हमको. हमारे जो डिबंकिंग सेशंस हैं 12x, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं. सेम ईमेल आईडी पे आप लिखें तो उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं. और भारत में ज्वाइन कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन कर सकते हैं, यूके में ज्वाइन कर सकते हैं, और यूएसए में ज्वाइन कर सकते हैं. चारों देशों में, हर वेस्टर्न वर्ल्ड, ईस्टर्न वर्ल्ड, और इवन साउथ अमेरिका, यू कैन ज्वाइन अस एंड राइट एन ईमेल टू अस. sattology.org को पढ़िए, .com को पढ़िए, bolo.live में डिस्कशन करिए, यूट्यूब चैनल्स को शेयर करिए. हम लोग मार्केटिंग बहुत ही कम करते हैं, सो यू हैव टू शेयर, और सबको बताना पड़ेगा. और फेसबुक पे जुड़िए, और इंस्टाग्राम पे जुड़िए, बहुत अनेक जगह पे हम लोग फैले हुए हैं, ट्विटर पे भी हैं, वहाँ जुड़िए सबके साथ. बहुत सारे वीडियोस आते हैं, शेयर करिए. और हमको हर कोई ये कंप्लेन करता है कि आपके जो है सब्सक्राइबर बहुत कम है. बाकी शोज अच्छे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है ना. एंड तो आप जरूर शेयर करिए, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी. And good questions are coming in now. So there is a question by Sanjita Sarkar. Sanjita Sarkar, thank you for asking this question. सर, आपने रास लीला पे जो सेंटेंस बोला था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि आपने सुना होगा कि वृंदावन में एक फॉरेस्ट है जहाँ जाता है कि श्री कृष्ण रासलीला करते हैं. हाँ, बिल्कुल करते हैं. उसका वन है श्री कुंड कुंज, श्रीहरि कुंज जगह है, उधर करते हैं. ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं. भागवत पुराण में आप पढ़ सकते हैं. एंड थैंक यू एन कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रमोटिंग, हेल्पिंग अस एंड टेलिंग अबाउट अस. निधि वन, ऋतु खरब बोल रही हैं. और क्वेश्चन है वेदिका भारद्वाज बोल रही है, मेडिटेशन इज गुड वे टू कंट्रोल माइंड एंड माइंड इज आल्सो कंट्रोल. नेक्स्ट वीक विल डिस्कस अबाउट द माइंड, तो बी रेडी. वेदिका जी, बी जो जॉइन नेक्स्ट संडे, इट्स ऑल अबाउट द माइंड. निशांत केतु जी पूछ रहे हैं, आचार्य जी कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इलेबोरेट ऑन गोत्रा एंड इट्स ओरिजिन अबाउट ग्रह एंड हाउ पीपल मिस इंटरप्रेट प्लैनेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आचार्य नहीं हूँ, और सो उधर यू कैन कॉल मी द ऑथर, लेखक, एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट. लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, गोत्र प्रजापतियों के नाम पे होता है. गोत्र इज द वे टू डिफाइन योर और आइडेंटिफाई योर लीनिएज फ्रॉम वेयर यू हैव कम. ओके. सो जय श्रीवास्तव चौधरी पूछ रहे हैं, नाउडेज पीपल एड्रेसेस ए पर्सन एज डिप्लोमेटिक इफ ही शी इज केयरफुल व्हाइल स्पीकिंग. ये कलयुग का निशानी है. जयंत श्रीवास्तव चौधरी, इट इज अ साइन ऑफ कलयुग that people do not like a measured speaker. People just want कि अपने दिल की बात खोल के रख दो. That is the strategy of the enemy. The enemy tells you just speak openly, but we have to follow all these qualities. Anudaya karam vakyam satyam priyatam chaya swadhyaya visanam chena vanmayam tapochyate. We have to follow. So don't get carried away. The next question is Indian लिख रहा है, sir, how to respond to abusive person? It all depends how much capable you are. Shishupal was abusive. Krishna tolerated him for 99 abuses. On the 100th, he killed them. It all depends how capable you are. If you cannot do anything, just stay quiet and go away. Swadhyaya, Vyasanam.
It's better to be silent with such people. Myself stay away because I don't want to talk to people who disturb. You know? And thank you so much. And एक क्वेश्चन है, Bandana Mahapatra. How to unite with God? That is yoga. Okay, yoga. यूनाइट होना क्यों चाहते हैं? उनका सेवा क्यों नहीं करना चाहते? वंदना, why do you want to serve God instead of uniting with him? What are you going to get by uniting? आपको ऑटोग्राफ देंगे भगवान, लिखेंगे हाथ के ऊपर, यू आर विद मी. सर्विंग इज मोर इम्पोर्टेंट. एक और क्वेश्चन पूछा है संजीता सरकार ने, विष्णु भगवान जी ने जो भी अवतार लिए हैं उनका एक बार डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा अवतार किस लिए लिया था? We'll do other show of that. There are a lot of 24 avatars are there. We'll do another show. And any other question anyone has, you can keep asking me. एक इनका क्वेश्चन आया है पीयूष कुलकर्णी का. Sir, make a video on different lokas like Patal, Sutal, Atal, aliens living. Stop calling them aliens. वो लोग आपको बुलाएं aliens, कैसा लगेगा? Alien is an American word which was used by the American immigration called alien immigration. Anyone who is outside of US is called alien in US. अभी उन्होंने बना दिया नया थ्योरी UFOs वाला. ये रियलिटी है. Life is on every single planet of the world. Okay, so don't worry. Just focus on your karma. Get out of this place. And so thank you so much and all of you for joining today. I'll give you back your 13 minutes. आज का शो थोड़ा छोटा था and heavy था लोगों के लिए. And please let me know and please support us. Join us big time. And all our programs you join, all our videos you join, and let us know how we can make it better and make a difference. एक क्वेश्चन आया बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है. I'll just take it. Sir, can you please throw some light on myths about Uttarakhand and brief tell what happened after Ram's return to Ayodhya? I'll do that in detail, but आपको just थोड़ा सा बता दूं. Uttarakhand is Devbhoomi. So remember, Himachal, Uttarakhand, and these are all, or Uttaranchal, all these are Devbhoomi. So there are a lot of distortions are there, but I don't know which one they're referring to, but they are Devbhoomi. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड वेदिका भारद्वाज लिखते हैं कि एजुकेट अस फॉर फ्री. दैट इज ट्रू. सो बट अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट परिचर्यात्मकम कृष्णम, परिचर्यात परिप्रश्न परि तद्विधि प्रणिपातेन, without प्रणिपातेन परिप्रश्नेन. So you have to reciprocate. And the one question is very interesting. Yo. So, sir, what happened if I am quiet for 1 month? Your enemies will be very happy, and probably your relatives will be very happy, right? I don't know what happened. Sir, bring session on Surya God and benefits of worshipping him. Definitely, we'll do that. So, thank you all for joining. Namaskar, Jai Shri Ram, Jai Jagannath. Thank you.